बहुत सारे लोग कमेंट्स में और मैसेजेस में बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं एंड सम ऑफ देम आर वेरी कॉमन, क्योंकि मेरे माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे बिफोर आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी। सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा। और आज के वीडियो में हम किसी वर्कआउट या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशनल टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आई विल आंसर 10 most common questions related to health and fitness that people might have. Let's start. Let's go over the questions one by one. First one is very common. Should females work out during periods? Why not? Because there is no scientific reason for why females should not work out during periods. In fact, workout करने से happy hormones release होते हैं which can help you with your mood swings. And workout करने से आपको pain और bloating वाली feeling में भी reduction होता है. So I will suggest that you should definitely work out during your periods. But yes, intensity of workout may differ because सबकी bodies different होती हैं. So if you can manage an intense workout, go for it. But if you feel lot of discomfort, I would recommend you to go for a light workout like walk, yoga, pilates, etc. But there is no reason to skip your workout during periods. The next question I have is how to reduce lower tummy fat. I guess बहुत सारे लोगों का ये question होगा भी. So सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ that forget about spot reduction because that is something which is not possible. और अगर आपको lower tummy fat कम करना है, the only way is to reduce overall body fat percentage. और वो possible होगा कैलोरी डेफिसिट से. अब कैलोरी डेफिसिट आपको क्रैश डाइट्स या सडन डाइट चेंजेस करके नहीं करना है. You have to include some kind of physical activity and maintain a healthy lifestyle and eat healthy food so that you can lower your calories in your daily diet, and that is the only way to reduce lower tummy fat. Next question is something that I face most of the time. Should females take whey protein? अब सभी females को ये समझना होगा that protein is not a muscle building pill. इनफैक्ट प्रोटीन आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको डेली रिक्वायर्ड भी होता है. एंड इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस बिकॉज प्रोटीन आपके मसल्स को रिपेयर करने के काम आता है एंड इट ऑल्सो प्रिजर्व्स लीन मसल मास विच इज़ हेल्पफुल एट अ लेटर एज. सो इफ़ यू आर एबल टू फुलफिल योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट थ्रू नेचुरल फूड, it is best. But because of so many reasons हम natural food से वो requirement पूरी नहीं कर पाते हैं. So whey protein is the best option because whey protein बहुत जल्दी digest होता है और आपके muscles को repair करने के काम आता है. So never ever shy away from taking whey protein. Next one is something that people on their weight loss journey might relate to. How much calorie deficit is required for weight loss? You need to understand that calorie need may vary from person to person because it depends on age, weight, sex, height, physical activity, etc. But general thumb rule ये है कि per day आपको 500 कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा अगर आपको एक हफ्ते में आधा किलो वेट कम करना है. आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा सकते बिकॉज इट विल क्रिएट डेफिशिएंसी ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. सो जो बेस्ट वे है कैलोरी डेफिसिट करने का दैट इज़ टू इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी एंड टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेजेस, क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल. And it is not a one-time thing. You have to adopt a healthy lifestyle. और जब आप ऐसा कर लेंगे so definitely आप कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन कर पाएंगे और अपने वेट लॉस गोल को भी अचीव कर पाएंगे. Now one of my most favorite questions, should females lift heavy? So heavy lifting करने से लड़कियां लड़कों की तरह नहीं दिखने लगती because males और females के hormones different होते हैं. In fact फीमेल्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लिफ्टिंग करने से उनका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है विच हेल्प्स यू टू बर्न कैलोरीज इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग आउट.
और लिफ्टिंग करने से आपका लीन मसल मास प्रिजर्व होता है और साथ साथ आपके बोन्स भी स्ट्रेंथन होते हैं, जो फीमेल्स को लेटर एज में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कॉमन डिजीजेस से बचाते हैं। सो आई वुड एडवाइज ईच एंड एवरी फीमेल टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब आप बिगिनर हैं तो आप लाइट वेट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट व्हेन यू गेन ऑल दी स्ट्रेंथ there is no harm going to a heavier weight. So do strength training and that will also help you to gain lot of confidence. Coming on to next one, how many days should we work out in a week to lose weight? It all depends on how much you are willing to commit to your workout. But definitely you should do your workout for at least 4 to 5 days in a week, and that too should be a combination of strength training as well as cardio. So you can do cardio for 30 minutes and strength training for about 40 to 45 minutes every day, and keep 1 or 2 days of rest because that is also important. So you can start with 2 to 3 days and slowly build up to 4 to 5 days. Next question से बहुत सारे लोग relate कर पाएंगे. How much good fat should we intake every day? गुड फैट के हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. इट हेल्प्स इन ब्रेन फंक्शनिंग, कीप्स आवर हार्ट हेल्दी, रेगुलेट हार्मोन्स, प्रोवाइड एनर्जी एट्सेट्रा. अब आपको ये समझना चाहिए दैट गुड फैट इज रिक्वायर्ड इवन व्हेन यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी. सो 15 to 20% ऑफ योर टोटल कैलोरी शुड कम फ्रॉम गुड फैट, और वो मोस्टली होनी चाहिए अनसैचुरेटेड फैट से. एंड द बेस्ट सोर्सेज आर फिश ऑयल एंड ऑलिव ऑयल. इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड फैट जैसे घी, बटर, रेड मीट, इसको लिमिट में खाना है, और ट्रांस फैट जो कि प्रोसेस्ड फूड में होता है उसको बिल्कुल अवॉइड करना है. नेक्स्ट इज समथिंग यू ऑल शुड नो, हाउ टू कीप मेटाबॉलिज्म फास्ट. इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, डू सम फिजिकल एक्टिविटी एंड डेफिनेटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ड्रिंक इनफ वाटर, get good sleep and manage your stress, and most importantly eat enough at regular intervals, because कम खाने से या एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे जाने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. सो यू शुड नो दैट एंड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स इफ यू वांट टू कीप योर मेटाबॉलिज्म हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो, व्हाई वार्म अप एंड कूल डाउन इज इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे लोग टाइम कम होने की वजह से वर्कआउट से पहले वार्म अप और वर्कआउट के बाद कूल डाउन मिस कर देते हैं. बट यू शुड नो कि वार्म अप करने से आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, विच हेल्प्स योर बॉडी टू प्रिपेयर फॉर वर्कआउट एंड इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इंजरी. और वर्कआउट के टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बहुत ज़्यादा राइज हुआ होता है, सो यू कैन नॉट इमीडिएटली स्टॉप. तो वर्कआउट के बाद उसको नॉर्मल लाने के लिए आपको कूल डाउन भी डेफिनेटली करना चाहिए, जिसके लिए आप लाइट ट्रेडमिल वॉक, स्लो पेस साइकिलिंग ये सब कर सकते हैं. एंड आफ्टर द कूल डाउन 5 to 10 मिनट्स आपको स्ट्रेचिंग भी ज़रूर करनी चाहिए. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज समथिंग दैट लॉट ऑफ फीमेल्स माइट वांट टू नो, हाउ टू रिड्यूस वाटर रिटेंशन. इट्स वेरी सिंपल, रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक, ईट मोर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम रिच फूड, avoid refined carbs, have enough water and do some kind of physical activity. But most importantly, please avoid extremely low calorie diet. और जब आप ये सब करने लगेंगे, I am sure आपको water retention नहीं होगा. So this was today's video. I hope मैं आप लोगों के बहुत सारे doubts clear कर पाई होंगी. Keep sending your requests and questions in comment box and keep supporting the channel. I'll be back with next video very soon. And as I always say, follow your passion, follow your dreams and stay fit.